गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं पंकज कुमार मिश्रा, सीए। आप लोगों को टैक्सेशन आईपीसीसी के ऊपर कुछ अपना नॉलेज शेयर करूँगा आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, I like to explain you upon as already we have taken 2-3 classes. The basic structure of the class we already have been explained in the class. Now the next topic is what is the scheme, what is the scheme of taxation. How taxation system works upon. I have framed a structure which is basically known as scheme of taxation. याद करने के लिए इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ, जैसे गीता सार हम कहते हैं, इन द सेम मैनर एक टैक्सेशन सारांश मैंने बनाया हुआ। टैक्सेशन सारांश, ये टैक्सेशन सारांश ऐसा है कि इसमें द ऑल कंसेप्ट रिलेटेड टू entire income tax, all basic concepts related to entire income tax has been incorporated. Now the first, now the taxation assurances every person whose total income of the previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax is an SSE and chargeable to income tax in the assessment year at the rate or rates
prescribed in the Finance Act for that relevant assessment year. However, the total income shall be determined on the basis of his residential status. Now, अब आप ध्यान से समझें क्या मतलब है इसका। हमें ये देखना है कि इनकम टैक्स जैसे ही हमने शुरू किया, उसमें हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स क्यों, कैसे, किस लिए, क्यों गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि वो इनकम टैक्स कलेक्ट करे, व्हाई गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, व्हाई एज अ इंडिविजुअल वी नीड टू पे इनकम टैक्स। मैं इनकम टैक्स क्यों पे करूंगा? अगर मैं इन नटसेल आपसे बात करूं कि मुझे इनकम टैक्स पे करना है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं इनकम टैक्स क्यों पे करूं? मैं इनकम टैक्स क्यों पे करूं? जब मैं खुद से अर्न करता हूं, तो मेरी सारी इनकम खुद से है, ये सारी मैं मेहनत करता हूं, तो व्हाई आई शुड पे द इनकम टैक्स? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, as I already have been discussed, as all this point has already been discussed in our previous classes, कि there are some basic infrastructure facilities गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने एक डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ। I was elaborating upon कि जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने देखा कि टैक्सेशन क्यों, आखिर टैक्सेशन क्यों, हमने ये सोचा कि सर टैक्स क्यों, मैं क्यों टैक्स पे करूं, मुझे जरूरत क्या है टैक्स पे करने की? जब गवर्नमेंट मुझे कमाने के लिए हेल्प नहीं करती, तो वो फिर कैसे मुझसे टैक्स कलेक्ट करती है, क्यों कलेक्ट करती है? अब बच्चों, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि अब सरकार है, अगर सरकार के पास फंड नहीं आएगा, वो बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेगी? आप लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि रोड है, ब्रिजेस हैं, ऑल अदर फैसिलिटीज हैं, दैट इज हाउ द गवर्नमेंट विल कम टू नो एंड हाउ द गवर्नमेंट विल कम टू अरेंज इफ गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग विद द सफिशिएंट फंड। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि व्हाई वी नीड टू पे टैक्स? वी नीड टू पे टैक्स to improve the general infrastructure of the country. This is the reason, and in the same structure I already have discussed so many times कि हमने बताया था आपको कि as a ministry, as a Indian Constitution has provided us the 2 power to the central government. Central government has further framed his department. It's a Ministry of Revenue Department. Ministry of Revenue Department is further bifurcated into 2 sections, CBDT and CBEC. Now CBDT is responsible to generate the revenue from the direct taxes, and CBEC is responsible to generate the revenue from the indirect taxes. Now still question arises in your mind, sir, what is direct taxation and indirect taxation? This direct and indirect taxation is already been explained to you. Then again, I am explaining you. The direct tax is the tax system where the assessee or a person himself is liable to pay the tax. Suppose you have earned the income, आपने पैसे कमाए, you yourself will be responsible कि सर मैंने पैसे कमाए, मैं टैक्स लायबिलिटी में फॉल करता हूँ और ये मैं टैक्स मैंने जमा कराना है। इसका सेल्फ असेसमेंट, you will have to do that self assessment, and accordingly you will have to deposit the tax to the Department of Taxes. What is the difference now? Indirect taxation. What is indirect tax? Indirect tax in which an assessee himself is not directly
responsible to deposit the tax to the government. Like मैं कुछ परचेज करने जाता हूँ, मैंने वहाँ कुछ परचेज किया, मैंने परचेज करते समय उनको टोटल पेमेंट करी। सपोज करो 100 रुपए का कुछ परचेज किया मैंने, उस 100 रुपए के परचेज में 10 रुपए का मैंने उनको वैट पे करा, उन्होंने मुझसे वैट कलेक्ट किया, मैंने उनको 10 रुपए का वैट पे कर दिया। अब वो वैट जो मैंने पे किया है, वो वैट एक्चुअली में मैंने किसको पे किया? वो वैट एक्चुअली में मैंने पे करा जो शॉपकीपर वहां पे बैठा है, मैंने उसको वो वैट पे करा। तो मैंने टैक्स तो दिया, लेकिन टैक्स किसको दिया? मैंने टैक्स उस शॉपकीपर को दिया। अब वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास कैसे जाएगा? जो सेंट्रल बॉडी है, जो स्टेट बॉडी है, वैट कलेक्टिंग बॉडी है, वो उसके पास कैसे जाएगा? दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट शॉपकीपर कि वो उस टैक्स को मुझसे कलेक्ट करे और वो टैक्स कहाँ जमा करे? डिपार्टमेंट में जमा कराए। This is the differences. In the same way, there is so many taxes which is bifurcated on the basis of nature. The first nature is direct and the second nature is indirect taxation. In the other ways, who are responsible? Who are responsible? Number one. The first person I told you, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्कीम ऑफ टैक्सेशन, उसी को एक्सप्लोर करते हुए मैंने आपको ये भी समझाया क्यों। वहां पे मैंने आपको बताया था कि एवरी पर्सन का क्या मतलब है? एवरी पर्सन मीन पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे स्कीम ऑफ टैक्सेशन में लिखा है एवरी पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट which states about the person. The every person whose total income, every person whose total income अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। There is two things, total and income. Income have a different concept. It states under section 224. Apart from this, there is another concept that carry the concept of all incomes. Every person whose total income of the previous year. Now, there is a concept, it's a previous year. What do you mean by previous year? We will discuss this later on. Every person whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax. Exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax is an SSC. SSC is further defined in section SSC is further defined in section 2(7) of 2/7 of Income Tax Act, which states about now every person whose total income of the previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax is an SSC and chargeable to income tax in the assessment year. Assessment year as per the rates or rate prescribed in the Finance Act for that relevant assessment year. However, the total income shall be determined on the basis of his residential status. अब मैं फर्दर इसको इलैबोरेट करूँ आपके सामने, तो वो ये समझ में आएगा कि एवरी पर्सन, बोले सर पर्सन कौन? पर्सन का क्या मतलब होगा? कौन होगा पर्सन? पर्सन हम उसको कंसिडर करेंगे, अगर इन नॉर्मल सेंस में आपको समझाऊं पर्सन मीन्स क्या, तो आप ये समझोगे सर मैं पर्सन हो गया, मैं पर्सन हो गया, इट मीन्स मैं क्या समझूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक कि मैं सेक्शन 231 में फॉल नहीं करता। सेक्शन 231 क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 231 फर्दर एक्सप्लेन करता है पर्सन के बारे में। पर्सन क्या होता है? पर्सन, जैसे सेक्शन 231 ने बताया, पर्सन मींस एन इंडिविजुअल। नंबर 1 पॉइंट, एन इंडिविजुअल कौन? अ नेचुरल पर्सन, ए ह्यूमन बीइंग। सपोज आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेक्शन 231 of Income Tax Act under their definition of person. The first point is an individual and the second point a Hindu undivided family. It's a HUF. The first one is an individual and the second one is a HUF. HUF, Hindu undivided family. मैं जिक्र करता हूँ, आप लोगों को शायद किसी को पता नहीं होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या चीज होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एज इट्स नेम रिप्रेजेंट्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मींस फैमिली व्हिच इज नॉट येट डिवाइडेड।
पहला नाम ये समझ में आता है। अनडिवाइडेड मीन्स अभी तक इसका डिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यू मेंबर्स। कैसे ये फॉर्म होता है? मेंबर्स होते हैं और मेंबर और कर्ता होता है। एचयूएफ में ये फॉर्म होता है, कर्ता इज द लीडिंग बॉडी एंड द पार्ट ऑफ देयर इज अ मेंबर्स, लाइक कर्ता एंड 1, 2 and 3, these are the members. Okay. Now further it says, a Hindu undivided family, a family which consists of all persons lineally descended from a common ancestors, including their wives and unmarried daughters. They are covered by the definition of section 231. And one more thing, another point, it says about a company, and thereafter it's a partnership firm, an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, a local authority, or every artificial jurisdictional person not falling within any of the preceding sub-clauses are covered under the definition of person. One more thing, the definition of person start with the word person includes. Person includes. It means person includes is a inclusive section. Whatever scope would be there, it would be covered by the definition of person. जैसे कि 7वां क्लॉज ऑटोमेटिकली अपने आप कहता है every artificial jurisdictional person not falling within any of the preceding sub clauses. लेकिन जो ऊपर कवर नहीं किया हुआ, 1 से लेके 6 तक जो कवर नहीं किया हुआ, वो पॉइंट्स भी इसमें कवर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि 1 से लेके 6 तक में वो कवर ना हो। दैट इज योर सेक्शन 231 व्हिच स्टार्ट्स लाइक पर्सन इंक्लूड्स। अगर पर्सन इंक्लूड्स हो गया, इट मींस कि वो दिस इज ए इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ पर्सन। अब हमने ऊपर देखा, आपको टैक्सेशन स्कीम में हमने यहाँ पे पढ़ाया था, अभी बताया हमने आपको क्या होता है। ये बेसिकली एवरी पर्सन, लाइक ये एवरी पर्सन, एवरी पर्सन। अब यहां पे एवरी पर्सन का हमने डिफाइन कर दिया सेक्शन 231 में। अब क्वेश्चन आता है, सर ये एवरी पर्सन 231 में वो सारे कवर हो गए, जो नहीं कवर हो गए अगर वो भी पॉइंट नंबर 7 में कवर होते हैं तो वो भी फॉल करेंगे सेक्शन 231 में। और अकॉर्डिंगली जो अभी स्कीम ऑफ टैक्सेशन सारांश जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दिस इज टैक्सेशन सारांश which is compiled accordingly and incorporating the entire act's basic concepts. The entire act, Finance Act, the entire Income Tax Act, the all basic concept is incorporated in this taxation सारांश। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एवरी पर्सन तो हमने देख लिया, पर्सन का मतलब डिफाइन कर लिया हमने। A person is a natural person, a person as per section 231 of the Income Tax Act. Now, whose total income? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बोले सर ये टोटल इनकम का क्या मतलब हो गया? मैंने कहा टोटल इनकम में 2 एलिमेंट है। अगर इसको मैं वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होगा, बोले सर पॉइंट नंबर 2 था मेरा, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम। अब पहले इनकम होगा तब तो टोटल होगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है, बोले सर पहले इनकम करोगे, इनकम कहीं से कमा के आओगे तभी तो उसको एग्रीगेट करोगे आपस में, तभी वो टोटल होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इनकम क्यों नहीं लिखा है? अगर मैंने यहाँ लिखा है एवरी पर्सन हुज इनकम, अगर मैं लिखता हूं ऐसे लिखा एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, shall has to pay the tax as per the rate prescribed as per the Income Tax Act। अगर मैं वहां पे वो चीज नहीं लिख के अगर ये चीज लिखता हूं whose income, या मैं लिखता हूं whose income, और मैं लिखता हूं whose gross टोटल इनकम, ये कैसे एक दूसरे को बाइफरकेट करती हैं? whose टोटल इनकम।
अब टोटल इनकम में जैसे ही हमने आपसे बात करनी शुरू करी तो ये सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में, वो होता है सर ये इनकम क्या? इनकम एज डिफाइंड एज पर सेक्शन 224 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 which define your income. Further, there is in Income Tax Act there is 5 heads of income. 5 heads of income. सबसे पहले हम देखेंगे कि whose every person whose total income. एलिमेंट क्या हो गया वहां पे? इनकम हो गया। सर वो इनकम कहां से आएगा? वो इनकम जो आएगा मेरे पास में, that income should fall under the definition of section 224. नंबर 1 चीज होगी। दूसरी चीज, इनकम टैक्स एक्ट ने कितने हेड्स ऑफ इनकम बताए हुए? 5 हेड्स ऑफ इनकम बताए हुए। कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम बताए हुए? सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, अनदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम other sources. Now, सबसे पहला सेक्शन 224 जो कहता है इनकम को डिफाइन किया उन्होंने। उसके बाद हमने देखा 5 हेड्स ऑफ इनकम है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्या ये सारे इनकम उसी हेड से आ रहे? क्योंकि इनकम टैक्स ने अपने सारे इनकम को उसी हेड्स में इलैबोरेट किया हुआ है। नंबर 1, क्या ये इनकम सैलरी का है? क्या इनकम हाउस प्रॉपर्टी का है? क्या इनकम पीजीबीपी का है? क्या इनकम कैपिटल गेन का है? क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का? ये सारे इनकम आपस में जब क्लब होंगे तब वो बन जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम। लाइक सारे इनकम को मैंने, अभी मेरे पास में इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इन सब के इनकम कंप्यूट करने के डिफरेंट तरीके हैं। अनदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन, and income from other sources। ये सारे इनकम है, ये सारे इनकम है। 5 हेड्स ऑफ द इनकम, इनकम हेड 1, हेड 2, हेड 3, head 4 and head 5. These 5 heads of the income are when aggregated, when they all incomes are aggregated, they became gross total income. There is also provision of clubbing of income and set off and carry forward of income. After arriving gross total income, we are giving adjustments of clubbing provision and set off and carry forward provision.
After aggregating and giving the adjustment of clubbing provision and set off and carry forward provision, the income we achieve is our gross total income. From this gross total income, हम चैप्टर 6 डिडक्शन देते हैं, जो सेक्शन 80C to 80U तक अलाउड होता है। तब ये डिडक्शन देने के बाद जो इनकम हमारे पास बचती है, जो इनकम हमारे पास आती है अराइव होके, दैट इनकम इज कॉल्ड एज टोटल इनकम। दिस इज माय टोटल इनकम, जो मैंने इनिशियली आपको भी बताया था कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम मींस क्या होगा, पर्सन 231 हमने डिफाइन करा, और हुज टोटल इनकम, जैसे अभी मैंने आपको बताया टोटल इनकम कैसे अराइव करना है, टोटल इनकम हमें इस तरीके से अराइव करना है। तो ये मेरा हो जाएगा टोटल इनकम, जिसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये पांचों हेड्स के इनकम को हम पहले एग्रीगेट करेंगे। उसके बाद एग्रीगेट ऑफ इनकम्स, उसके बाद एडजस्टमेंट्स ऑफ क्लबिंग प्रोविजन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन करने के बाद मेरे पास में ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं लेस करूंगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, जो सेक्शन 80C to 80U मुझे अवेलेबल है। वो करने के बाद फाइनली मेरे पास टोटल इनकम अराइव होगा, जिसके ऊपर मैं क्या चार्ज करूंगा, जिसके ऊपर मैं टैक्स चार्ज करूंगा। अब टैक्स कैसे चार्ज करूंगा, किस रेट से चार्ज करूंगा, क्या स्लैब रेट है मेरा, ये सारी चीजें फाइनेंस एक्ट में डिफाइंड होती हैं कि फॉर ईच एंड एवरी असेसमेंट ईयर फॉलोइंग रेट इज टू बी फॉलोड। फर्दर आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, अब मैं बात करूं प्रीवियस ईयर का, तो मैं समझूंगा कि आपको कुछ आइडिया होगा प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं। अगर मैं पूछूं प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे ये बताइए प्रीवियस ईयर कितने महीने का होगा? क्या वो 10 महीने का होगा? क्या वो 8 महीने का होगा? क्या वो 3 महीने का होगा? क्या वो 12 महीने का होगा? कितने महीने का होगा? क्या वो 15 महीने का होगा? देयर इज ईयर, ईयर शब्द है उसके साथ। दिस इज अ प्रीवियस ईयर। ईयर का मतलब क्या? ईयर मींस 12 मंथ। अब प्रीवियस का क्या मतलब हो गया? प्रीवियस का मतलब लास्ट ईयर हो गया। कौन सा लास्ट ईयर? ये वाला लास्ट ईयर है, आज से 5 साल पहले वाला लास्ट ईयर। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आपने कहा लास्ट ईयर, बोले सर कौन सा वाला लास्ट ईयर? प्रीवियस ईयर मींस 12 मंथ। ये चीज तो क्लियर हो गई। बाकी चलो जी, यहाँ पे क्योंकि ईयर वर्ड लगा हुआ है, ईयर वर्ड का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? इट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, राइट? ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर, आपने बोला सर लास्ट ईयर, कौन सा वाला लास्ट ईयर? किसके कंटेक्स्ट में लास्ट ईयर? कौन सी ईयर? असेसमेंट ईयर से कौन सा वाला लास्ट? जैसे 14-15 भी चल रहा है, मैं कहता हूं 12-13 वाला, वो भी तो प्रीवियस ईयर। क्या उससे पहले 9-10 वाला, वो भी तो प्रीवियस ईयर ही है, वो भी तो प्रीवियस ईयर ही है। असेसमेंट ईयर से कौन सा वाला प्रीवियस ईयर? बोले सर प्रीवियस ईयर मतलब वो, प्रीवियस ईयर का मतलब वो, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर, नंबर 1 मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब आप बोलोगे सर ये असेसमेंट ईयर है, अगर सोचो फिर बोलोगे सर ये तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया? आपने बोला सर प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल मींस, तो यहां पे करंट फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं लिखा है? अगर इसे ऐसे भी लिख सकते थे प्रीवियस ईयर मींस द करंट फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ऐसा भी तो वो लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा, क्यों लिखा? प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर।
अगर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं या मैं आपको समझाऊं तो मैं कैसे समझाऊंगा? जैसे असेसमेंट ईयर, अभी आप बता सकते हो कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में फर्क क्या होगा? हाउ इट कुड बी अ सेम? आपने बोला सर 15-16 असेसमेंट ईयर चल रहा है, फिर आपने बोला सर 15-16 नहीं सर असेसमेंट ईयर नहीं, ये फाइनेंशियल ईयर है। मैं कह रहा हूं नहीं, दोनों अलग अलग है। आप कह रहे हो नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर दोनों अलग अलग हैं तो 15-16 कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। वो क्या डिफरेंस होगा? सर एक कॉमन चीज है इसमें, दोनों कितने महीने के होंगे? 12। बोलिए तो क्लियर सी बात होगी, दोनों 12 महीने के होंगे। चलो जी सर मैंने मान लिया 15-16 इट्स 12 मंथ्स। लेकिन ये तो असेसमेंट ईयर हो गया। असेसमेंट ईयर, अब मैं बोलूं सर असेसमेंट, इस असेसमेंट का क्या मतलब है? बोले सर ये तो ईयर, ये तो वो वाला ईयर है जो असेसमेंट हो रहा है। बोले सर किसका असेसमेंट? टैक्स पे होगा। ऑब्वियसली कोई असेसमेंट तो होगा। असेसमेंट का क्या मतलब है? आप एग्जाम देते हो, एग्जाम में सपोज करो एग्जाम देके आप आए, पेपर लेके आ गए, घर पे आके बैठे बढ़िया, उसके बाद 2 महीने के बाद आपका क्या आता है? रिजल्ट आता है। जब आपका रिजल्ट आता है तब आपको एक्चुअली वो रिजल्ट होता क्या है? वो रिजल्ट होता क्या है आपका? उस रिजल्ट में जो भी एनालिसिस निकल के आती होती है वो क्या होती क्या है जनरली? वो एक्चुअली में आपका असेसमेंट रिपोर्ट होता है। यही चीज होती है। बोले सर ये जो मैं एग्जाम देके आई हूं या आया हूं व्हाटएवर, तो वो क्या चीज है? दैट इज माय असेसमेंट रिपोर्ट। इन द सेम मैनर मेरा क्या होगा? असेसमेंट ईयर। इसका मतलब क्या होगा? वो असेसमेंट वाला साल है। वो किस चीज का असेसमेंट? क्योंकि मैं इनकम टैक्स पढ़ रहा हूं तो किस चीज का असेसमेंट होगा? इनकम का असेसमेंट होगा ना। अगर मैंने पिछले साल कितना कमाया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितना कमाया, उसको मैं कहां ले जाके डालूंगा? उसके लिए मैं क्या करता हूं? मैं पिछले साल जितना इनकम मैंने कमाया उस इनकम के लिए मैं डिपार्टमेंट के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं। वो इनकम टैक्स रिटर्न मेरा कब एसेस होता है? असेसमेंट ईयर में एसेस होता है। अगर मैं कहता हूं मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा है? 15-16 है, इट मींस मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? यस, मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 14-15। इसका मतलब क्या होता है? 14-15 इज माय प्रीवियस ईयर एज वेल एज इट्स अ फाइनेंशियल ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16। ये बात होगी। तो अब जैसे यहां पे मैंने आपको बताया असेसमेंट ईयर 15-16 कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ, एट द सेम टाइम इट्स अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर भी कॉमन चीज होगी क्या? कितने महीने का होगा? ये 12 महीने का होगा। लेकिन ये क्या होगा? 14-15। एट द सेम टाइम 15-16 मेरा फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन उसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 15-16 मेरा फाइनेंशियल ईयर है, माय फाइनेंशियल ईयर इज 15 and 16। असेसमेंट ईयर 16। यस, तो मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 16 and 17। इसका मतलब क्लियर कट बात होगी। बोले सर फाइनेंशियल ईयर मींस द ईयर इन विच अ पर्सन अर्न्स इनकम। सिंपल सी बात। बोले सर द फाइनेंशियल ईयर, the year in which the person earns his income and the consequences of his income in regard of tax liability is determined and assessed in the assessment year। क्लियर सी बात हो गई यहां पे? बोले सर ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फाइनेंशियल ईयर 15-16। एट द सेम टाइम अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करता हूं तो असेसमेंट ईयर का जस्ट पिछला साल, अगर मेरा 16-17 इज माय असेसमेंट ईयर, तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 15-16। मतलब उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज माय प्रीवियस ईयर। इसलिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम नहीं हो।
ये क्लियर हुआ आपको? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया। यहाँ आप ही सब लोग कंफ्यूज होते हैं इनिशियल स्टेज पे, सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर फर्दर, जैसे आपने एक चीज और कहा था मुझसे, बोले सर लास्ट ईयर, अब इसको इस कॉन्सेप्ट को देखो, लास्ट ईयर कैसे? मैंने कहा सर असेसमेंट ईयर 16-17 है, ठीक है ना? अब असेसमेंट ईयर 16-17 तो लास्ट ईयर कौन सा वाला लास्ट ईयर? समझ रहे हो ना? लास्ट ईयर तो 75 है। पीछे 2016-17 से पीछे जाओ तो देयर इज नंबर्स ऑफ लास्ट ईयर। कौन सा वाला लास्ट ईयर? तो वहां पे क्या होगा? दैट विल ओवररूल ऑफ योर थिंकिंग एंड थॉट्स। बोले जी नहीं, वो करेक्ट कंसेप्ट नहीं होगा। करेक्ट कंसेप्ट ये होगा, बोले सर असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये वर्ड है, मैं आपको प्रीवियस ईयर डिफाइन करता हूं, प्रीवियस ईयर ये क्या कहता है? प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होता है डेफिनेशन? इट स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ मींस। इसका मतलब आपको पता मींस क्या चीज होता है? डेफिनेशन कितने तरीके से शुरू होते हैं? अगर मैं आपको इलैबोरेट करने की कोशिश करूं या बताऊं, तो अभी मैंने आपको पर्सन का डेफिनेशन सुनाया था, पर्सन समझाया था। पर्सन कैसे शुरू हो रहा था? पर्सन मेरा शुरू हो रहा था सर, पर्सन इंक्लूड्स। डिफरेंस देखो यहाँ पे, डिफरेंस क्या कहता है? सर आपने जो पुराना वाला डेफिनेशन पढ़ाया था पर्सन का, वहां पे आपने ये पढ़ाया था कि पर्सन इंक्लूड्स। तो मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि पर्सन इंक्लूड्स का मतलब इट्स अ इंक्लूसिव क्लॉज। मतलब अपार्ट फ्रॉम द क्लॉज नंबर 1 to 5, ठीक है, जो चीज फॉलो नहीं करती है 1 से लेके 5 तक, अगर कोई लीगल एंटिटी है या आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन है, तो वो भी कवर हो जाएगा बाय गिविंग द क्लॉज नंबर 7। इसलिए वहां पे डेफिनेशन में लिखा क्या? इंक्लूड्स। इसका मतलब हो गया पर्सन इंक्लूड्स। इंक्लूसिव डेफिनेशन, देयर इज अ चांस, देयर इज अ स्कोप कि इन विच कोई अगर आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन है तो वो पर्सन का पार्ट बन जाए। इसीलिए वहां पे उसको डेफिनेशन को डिफाइन करा किस तरीके से? पर्सन इंक्लूड्स। अब फर्दर अगर मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर्स में, तो प्रीवियस ईयर को डेफिनेशन शुरू कैसे किया इन्होंने? प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन इन्होंने शुरू करा, प्रीवियस ईयर मींस। प्रीवियस ईयर मींस मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जो भी चीजें समझा दी, आप कुछ भी समझ लो, आप कुछ भी समझ लो, मींस मतलब मींस। आपको अगर मैंने कह दिया कि दिस इज लेफ्ट मतलब दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट मतलब दिस इज राइट, इसका मतलब आ गया निकल के प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो आपको क्लियर हो गया होगा? बोले सर इसका क्या मतलब था? इसका यही मतलब था कि जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछला साल है, जो असेसमेंट ईयर का जस्ट पिछला साल, जो इन्होंने क्या बताया? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब कौन सा? वो वाला साल नहीं जो आपने बोला कि सर जो प्रीवियस ईयर मतलब वो लास्ट ईयर। बोले कौन सा वाला लास्ट ईयर? हाँ यस, वो वाला लास्ट ईयर। नहीं तो असेसमेंट ईयर के पीछे तो देयर इज अ नंबर ऑफ लास्ट ईयर, कुछ लास्ट ईयर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एज फार एज योर डेफिनेशन प्रीवियस ईयर डेफिनेशन इज कंसर्न, उन्होंने डिफाइन करा। कैसे डिफाइन करा? प्रीवियस ईयर मींस, यहां पे ये नहीं डाला प्रीवियस ईयर इंक्लूड्स। यहां पे क्यों नहीं डाला? अगर मैं पूछूं प्रीवियस ईयर इंक्लूड्स क्यों नहीं डाला? पर्सन में अभी मैंने बताया आपको, पर्सन में कैसे पर्सन का डेफिनेशन शुरू हुआ था, वो कैसे शुरू हुआ था? पर्सन इंक्लूड्स। अब यहां पे इसको शुरू करा कैसे? पर्सन मींस, सॉरी प्रीवियस ईयर मींस। प्रीवियस ईयर मींस मतलब द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अभी मैंने आपको बताया असेसमेंट ईयर का क्या मतलब, अभी बताया आपको कौन सा असेसमेंट ईयर, और फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब। पता चल गया तुमको? डिफरेंसेस पता लग गए क्या फाइनेंशियल ईयर होगा। और आपकी क्लैरिटी के लिए, जैसे ये असेसमेंट ईयर है, सपोज करो अभी जो मेरा ये ईयर चल रहा है, दिस इज, आपने मुझे दोनों चीजें बताया था। बोले सर ये असेसमेंट ईयर 15-16 है, बोले सर ये फाइनेंशियल ईयर 15-16 है, 15-16 ये बताया था आपने मुझे। मैंने कहा ये असेसमेंट ईयर 15-16 है,
लेकिन इसका जो पिछला साल है ये क्या हो जाएगा 14-15, इसका प्रीवियस ईयर। लेकिन कौन सा प्रीवियस ईयर? इमीडिएटली प्रीसीडिंग का, इसका जस्ट पिछला साल। इमीडिएटली प्रीसीडिंग का क्या मतलब होता है? जस्ट पिछला साल, उसका पिछला वाला साल, वो वाला साल क्या आ जाएगा? प्रीवियस ईयर। इसका मतलब 14-15। और 14-15 मेरा प्रीवियस ईयर है और 14-15 मेरा फाइनेंशियल ईयर भी है। यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम मैं अर्न करूंगा, अब अर्न को फिर जब मैं समझाने बैठूंगा तो अर्न का फिर डिफरेंट मतलब है। कैसे? अब इनकम अर्न करोगे मतलब इनकम से रिसीव भी कर लिया मैंने, सर इनकम मेरा अप्रूव भी हो गया, तो क्या ये सारी चीजें मेरी इनकम का पार्ट बन जाएंगी? ऑब्वियसली देयर इज सो मेनी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम पढ़ते हैं आगे आज पर सेक्शन 145A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वहां पे देयर इज डेफिनेशंस का हम कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। सेक्शन 17 की बात करेंगे सैलरी के केस में, तो उसने दोनों चीजें बताया हुआ है, रिसीट्स एंड ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी होगा दैट वुड बी टैक्सेबल इन द ईयर। अब फर्दर मैं वापस से आपको टैक्स सारांश वाले पॉइंट पे लेके जाऊं। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, 3 चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। पहला मैंने आपको बताया एवरी पर्सन, उस पर्सन का मैंने डेफिनेशन आपको समझाया एज पर सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हिच डिफाइंस, जैसे मैंने आपको समझाया पर्सन इंक्लूड्स, यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया और ये कारण भी बताया कि सर यहाँ पे पर्सन इंक्लूड्स क्यों लिखा, वहां पे पर्सन मीन्स क्यों नहीं लिखती। अगर पर्सन मीन्स लिखते तो क्लॉज नंबर 7 है, वो क्लॉज नंबर 7 ओवररूल हो जाता। इसी पॉइंट्स में जो क्लॉज नंबर 7 दिया हुआ है, वो क्लॉज नंबर 7 इसी सेक्शन को सपोर्ट नहीं करता एंड अकॉर्डिंगली इसका मतलब चेंज हो जाता। आप जब पढ़ोगे यहाँ पे लिखा है 7 पे, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस, वो सारे आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन इसमें कवर हो जाएंगे, इसलिए इसको लिखा क्या? इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स। उसके बाद मैंने आपको बताया एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, राइट, हुज टोटल इनकम। फिर मैंने आपको बताया कि इनकम क्या चीज है, इनकम कहां से आती है, इनकम कैसे होता है। इनकम अभी मैंने आपको बताया सेक्शन 224 इंटायर इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन करा हुआ है इनकम को, कि सेक्शन 224 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस द टर्म्स इनकम। अब वो कैसे डिफाइन करता है, वहां पे भी डिफिनेशन कैसे शुरू हुआ है 224 का? इनकम इंक्लूड्स, वहां पे भी डिफाइन करा है टर्म्स दैट इज इनकम इंक्लूड्स। उसके बाद इंटायर इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड्स डिफाइन करे हुए। कौन कौन से हेड्स? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। These all are the incomes. हर चैप्टर से हम क्या ड्राइव करते हैं? इनकम ड्राइव करते हैं। अगर वहां पे कोई एक्टिविटी होगी, वहां से कोई इनकम अगर हम अर्न करेंगे, that income is properly bifurcated in these heads, only in these heads of the income which is being prescribed by the Income Tax Act. Further उसमें फिर हमने आपको समझाया कि as per this कि whose total income, अभी total income पे हम नहीं पहुंचे हैं, अभी हम कहां पे पहुंचे थे? अभी हम सिर्फ इनकम को एग्रीगेट करा था, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस सारों को जब हम पांचों को क्लब करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? एग्रीगेट ऑफ इनकम आएगा निकल के। उस एग्रीगेट ऑफ इनकम में कुछ सेक्शन 60 टू सेक्शन 64 देयर इज ए क्लबिंग प्रोविजन एंड सेक्शन 70 टू सेक्शन 75 देयर इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन। आफ्टर गिविंग द एडजस्टमेंट ऑफ दीज प्रोविजंस हम ग्रॉस टोटल इनकम को अचीव करते हैं। हमारा आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम एडजस्टमेंट करते हैं चैप्टर 6 डिडक्शंस की, तो डिडक्शन सेक्शन 80C टू 80U हमारे को मिलता है। वो देने के बाद जब हमारा फाइनल फिगर अराइव होता है, दैट इज माय टोटल इनकम, जो मेरे डिफिनेशन में था, जो फर्दर अभी मैंने आपको बताया, जो टैक्स सारांश स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर इनकम टैक्स, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम। अभी हमने टोटल इनकम देख लिया कि टोटल इनकम हम कैसे ड्राइव करेंगे ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का भी मतलब मैंने आपको समझाया कि प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होगा, असेसमेंट ईयर क्या होगा और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, इनफैक्ट क्लियर नहीं था, फिर भी एक्सीड्स
उसके बाद हम देखते हैं, बोले सर ये चीज तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, टोटल इनकम आ गया, लेकिन इसकी चार्जेबिलिटी कब होगी? बोले यहां तक तो आ गया, लेकिन इसकी चार्जेबिलिटी अगर मैं करूंगा तो चार्जेबिलिटी वो यहां कब होगी? वो तब होगी which exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax. आपको बताऊंगा नॉट चार्जेबल टू टैक्स का क्या मतलब है। अगर मैं पूछूं कि आप मुझे ये वर्ड समझाओ, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो इसका क्या मतलब आप समझाओगे? चलो मैं समझाता हूं। जैसे ये कहता है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द, जैसे ये वर्ड कह रहा है एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट, मतलब कुछ ऐसे अमाउंट की वो बात कर रहा है, अगर कुछ उसी अमाउंट को मैं एक्सीड करूंगा और वो अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स नहीं लगता, उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता, अगर उस अमाउंट को एक्सीड करेगा मेरा इनकम, ठीक है, मैं उतना इनकम अर्न करूंगा जिस इनकम को, वो इनकम उस पर्टिकुलर अमाउंट को एक्सीड करेगा जो इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, सिर्फ उसी वाले पोर्शन के ऊपर मुझे टैक्स देना है। कहने का ये मतलब हुआ इसका कि एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट है, सबसे ऊपर वाली अमाउंट है, जो एग्जम्पशन लिमिट की सबसे ऊपर वाली अमाउंट है, उस अमाउंट को मेरा इनकम जब एक्सीड करेगा तभी मुझे क्या देना है? उसके ऊपर टैक्स देना। आई हैव टू पे द टैक्स अपॉन ऑन the amount which exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax. अब यहाँ पे मुझे पता कैसे चलेगा? बोले सर ये वाला जो इनकम मैंने अर्न किया है, ये इनकम मेरा नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये कैसे पता लगेगा मुझे? अगर मैं अज्यूम करूं आप लोग इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता, आप नहीं जानते, तो आप मुझे कैसे बोलोगे? बोले सर ये कैसे पता लगेगा मुझे कि ये जो इनकम है जो आप कह रहे हो exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, मैं कहां से लेके आऊं? मुझे तो पता ही नहीं कुछ। फिर मैं आपको बोलूंगा आप ऐसा करो, फाइनेंस एक्ट रिफर करो, वहां पे स्लैब होगा दिया हुआ प्रॉपरली, उस स्लैब में 100% ये चीज मेंशन होती है कि आपको कितना एग्जम्पशन है, मतलब कितने अमाउंट पे आपको टैक्स देना है, कितने अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना। अगर रिसेंटली अभी असेसमेंट ईयर 15-16 की मैं बात करूं, यहां पे 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक नील है, मतलब अप टू 2,50,000 हमारे को नील टैक्स पे करना है। इस कंटेक्स्ट में, इस पॉइंट के कंटेक्स्ट में अगर मैं इसको कोरिलेट करूं तो वो क्या चीज निकल के आएगी? सर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट। कौन सा मैक्सिमम अमाउंट? 0 से 2,50,000 मैंने समझाया आपको, 0 से लेके 2,50,000 रुपए का जो अमाउंट है उसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट है कौन सा है? वो 2,50,000, 2,50,000 इज द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मीन्स यहां पे क्या करा इन्होंने? इस पे रेट दिल रखा। उसके बाद स्लैब, दूसरा स्लैब बनाया। इनकम टैक्स में स्लैब डिफरेंट एसएससी के हिसाब से इन्होंने डिफाइन करा हुआ, फॉर इंडिविजुअल्स, for senior citizens, for companies, for firms, for AOP, BOI, they all have the different rate structure. I am talking with the individual's rate, 2,50,000 to 5 lakh. It's a 10%. 5 lakh to 10 lakh. It's 20%. 10 lakh and above. ठीक है, 10 लाख एंड अबव इट्स 30%. दिस इज द रेट। अभी मैंने सिंपल एक का बताया इंडिविजुअल को, बाकी देयर इज वेरियस, क्योंकि वो इससे मैं कोरिलेट करना चाहता हूं इसको। तो अभी हमने क्या देखा कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट। कौन सा अमाउंट? एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट, जो ये वाला अमाउंट है। इसको एक्सीड करेगा तभी जाके इसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी इसके ऊपर, तभी इसके ऊपर टैक्स ऑब्लिगेशंस आएंगे। तो एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स,
कौन सा अमाउंट? ये वाला अमाउंट जिसपे चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, उसको एक्सीड करेगा, उसको क्या देना पड़ेगा? उसको चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। किस साल में टैक्स पे करते हैं हम? अब भी जैसे मैंने आपको बताया, किस साल में टैक्स पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में टैक्स पे। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में जो इनकम मैंने अर्न करा है, उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, वो लायबिलिटी मैं किस साल में जाके जमा करूंगा? असेसमेंट ईयर। इसीलिए यहां पे क्या लिखा है इन्होंने? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। ये चीज क्लियर हो गई बात? बोले सर असेसमेंट ईयर की बात है, यहां पे एक बहुत छोटी सी चीज और है जो हिडन है। अगर उसको मैं एक्सप्लेन करने की बात करूं तो इनकम टैक्स ने एक बहुत बड़ा पावर दिया हुआ है मुझे, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटीज के पास में भी नहीं होता। इस पर्टिकुलर पॉइंट, वो कौन सा पावर है? वो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पावर है, वो एक ऐसा पावर है जो पावर एक एसएससी को बहुत टेस्ट में देती है कि सबसे पहला पावर मुझे दिया है क्या करने के लिए? कि मैं अपना टैक्स क्या करूंगा? कंप्यूट करूंगा, और मैं अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करूंगा। उसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी भी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पावर डेलीगेटेड टू द एसएससी है। 140A, सेक्शन 140A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो कहता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स कौन डिटरमाइन करेगा? एसएससी डिटरमाइन करेगा। I myself would be the responsible for determining the income. I myself would be responsible for determining the tax. I hope you are getting this, my points. Further, अगर मैं इस हिडन पॉइंट की बात करूं, इस हिडन पॉइंट की मैं बात करूं तो दिस हिडन पॉइंट्स गिव मी अ सोल पावर टू डिटरमाइन द सेल्फ असेसमेंट टैक्स व्हिच बेसिकली which basically give me a power of this. Now further, let me conclude this. What we have studied now, it's every person whose total income of the previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax is an SSE and chargeable to income tax in the assessment year. Chargeable to income tax in the assessment year, ठीक है? At the rate or rates, क्या है ये? At the rate or rates prescribed. At the rate or rates prescribed in the Finance Act for that relevant assessment year. क्या लिखा है यहाँ पे? At the rate or rates prescribed in the Finance Act for that relevant assessment year. मतलब वो वाले इनकम टैक्स एक्ट रेट जो उस असेसमेंट ईयर के लिए क्या है? रिलेवेंट है। किसके लिए होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उसी असेसमेंट ईयर के लिए रिलेवेंट वो रेट होने चाहिए। Thereafter, अब फॉर डिटरमाइनिंग दिस हमने देख ली सारी चीजें कि every person whose total income of the previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, chargeable to income tax in the assessment year at the rate or rates prescribed in the Finance Act for that relevant assessment year. उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, बोले सर वो सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अब आप ये बताओ कि उसका हम डिटरमाइन कैसे करेंगे स्टेटस कि उसको इंडिया में टैक्स देना है, इंडिया में टैक्स नहीं देना है। दिस इज अनदर कंसेप्ट व्हिच स्पीक्स अबाउट द हिज टोटल इनकम shall be determined on the basis of their residential status. This is all concept which comes out from section 5 to section 6 of Income Tax Act, which speaks the same कि सर क्या वो इंडिया में होगा तो टैक्स देंगे, क्या इंडिया में नहीं होगा तो टैक्स देंगे, कैसे करेंगे? This everything is to be determined as per the residential status. तो ये सारा अगर मैं नटसेल इसको वापस से एक बार कंपाइल करूं तो क्या आपके समझ में आ गया होगा? बोले सर पर्सन का मतलब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से
उसके बाद whose total income भी हमने समझाया आपको कि इनकम कैसे अराइव होता है. Every person whose total income of the previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax is an assessee and chargeable to income tax in the assessment year at the rate or rates prescribed in the Finance Act for that relevant assessment year. Very right. However, his total income shall be determined on the basis of residential status. I hope this is enough for the today. Thanks a lot. Thank you. Now I am concluding this.